a kaleidoscope of various cultures and traditions. India's cultural diversity is so beautifully strung with colorful strings of peace and harmony that it has caught the eyes from other planets. Our camera is going to capture what is happening on the planet Oliviano, which is far away from here. Confident you'll never get declined. Man come off and they just take time. One sit and stay flying down. No sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, pescando arena con sal. Yeah. Come on. Pero yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, prendiendo fuego en el suelo, gritando estrella en el cielo, y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré. Calypso, te daré, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Oh, that song is Spanish! Last time we got it from Spain! Earthlings have such enjoyment! Brizo! How beautiful that planet is! Brizo! Now I want more music, more celebration, more wonder, and more creation! Zuzu! Zim Zim! You are right though! Now no calypso, no calypso! I like dum dum dika dika! Aye, Captain, take the UFO to that land, that bright land, where such a creative music is coming. Ditang, ditang. Yo! Let's do the tan, chick chick! Yippee! Brizo! Which place is this, kiddos? We all came here listening to Dhitang Dhitang. Our compo got that sound. Lovely song. Dhitang Dhitang Tole. Oh, where are you from? You don't seem to have come anywhere from the earth. Zuzu, Zim Zim, righto. We are from Boliviano. Far away it is. We have come to see your land. मित्र, आपका स्वागत है. आओ, अपनी आंखों से ही देख लो. You are in West Bengal, the most beautiful state of India. और देखो तो, आपके स्वागत के लिए यहाँ कौन खड़ा है? নমস্কার, ঈশ্বরার বঙ্গভূমিতে তোমার অভিনন্দন। এটা স্বাধীন ভারতের 19 রাজ্যের মাঝে 8টি রাজ্য। এবার আমি তোমাকে ছন্দ, রাজ্য, সংস্কৃতি এবং জীবনধারার সাথে পরিচয় করাই। আশা করি যে তোমাকে এই বেঙ্গলি কালচার খুব ভালো লাগবে। वैसे तो कला संस्कृति से समृद्ध इस राज्य में कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन हुगली नदी गंगा के किनारे मां बस्तारिणी काली का एक ऐतिहासिक मंदिर भी है,
चलो जानते हैं क्या है इस मंदिर यह का स्थल इतिहास। अध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। प्रभावशाली वाणी एवं तेजस्वी व्यक्तित्व वाले युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद तथा उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की पहली मुलाकात इसी मंदिर के परिसर में हुई थी। विश्व को एक नया संदेश देने वाले विवेकानंद का अध्यात्म का सफर यहीं से शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने इसका जिक्र अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से किया। तब गुरुजी बोले, मेरे पास क्यों आया? जा माँ से मांग ले, माँ तो सबको सब कुछ देती है। हे माँ, विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। क्या तूने मांगा माँ से? नहीं मांग पाया वो सुख सुविधाएं। तेरा जन्म मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हुआ है। अगर तू अपने लिए सुख सुविधाएं मांगेगा तो सर्व का उद्धार कैसे करेगा? और इस आत्मज्ञान से उनके जीवन की दिशा बदल गई और आज उनके कहे गए एक एक वचन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। एक समय पे एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल और बाकी सब भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, यही जीवन का लक्ष्य हो। अरे ये क्या कर रहे हो? यह तो यहाँ की पोशाक है। माफ करना बंधु, यह मेरा मित्र है। यह यहाँ के प्रसिद्ध त्योहारों के दर्शन करने आया है। नमस्कार, आओ बंधु, तुम्हें लेकर चलता हूँ दुर्गा पूजा के पंडाल की ओर, जहाँ देश भर के नागरिक मिलकर हिस्सा लेते हैं। बंगाल में ज्ञान और भक्ति का अनूठा मेल यहाँ की विशेषता को दर्शाता है। करते हैं एक झांकी का दर्शन। বাজা কাসর বাজা উল্লু দেয়ার শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা। लगता है तुम्हें पढ़ने का शौक है। आओ तुम्हें प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा का मेल एक साथ दिखाता हूँ। चलते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की ओर और मिलते हैं यहाँ के छात्रों से। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि कही जाती है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को स्थापित कर शिक्षा को एक नई दिशा दी है। यहाँ भारत की पुरानी आश्रम शिक्षा के अनुसार पढ़ाई होती है। यहाँ किसी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे छात्रों को पढ़ते हुए देखा जा सकता है। यह जगह हस्तकला, नृत्य और संगीत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुरु टैगोर ने मात्र 5 छात्रों को लेकर एक विद्यालय बनाया था और आज हम लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं। जानते हैं किस प्रेरणा से उन्होंने यह कार्य किया। मैं एक आशावादी होने का अपना ही संस्करण बन गया हूँ। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो मैं दूसरे से जाऊंगा या एक नया दरवाजा बनाऊंगा। वर्तमान चाहे कितना भी अंधकारमय हो, वो शानदार सामने आएगा। इस सुंदर सुविचार से मेरा मन प्रेरित हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस भूमि के बारे में जानो, जिसमें कितने ही महानुभावों ने अपने कार्यों से भारत भूमि को विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया। आप है राजा राम मोहन रॉय, आधुनिक भारत के निर्माता। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त कर नवीन भारत का निर्माण किया। ज्ञान की ज्योति से मानव मन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। जो मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मदर टेरेसा की। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके गूंज की कोई सीमा नहीं। कि बंगाल भारत का वो बेमिसाल हिस्सा है
जहाँ से ताल्लुकात रखते हैं 4 नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति दूत मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, इन सब ने अपने कार्यों से पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। बंगाली कवि क्या खूब लिखते हैं। बांग्ला আমাদের भाषा, बांग्ला আমাদের গর্ব, बांग्ला আমাদের आशा। तो ऐसी है मेरे बंगाल की वो, मेरे भारत की वो। जय हिंद, जय भारत। Hey, breathtaking experience! Hey, have you heard of Odisha? We are going there tomorrow. Do you want to come with us? You have arrived at your destination. ओडिशा एक रहस्यमय होई रहेची। प्रत्येक कुंडा एक अविस्मरणीय कहानी अछि। एको आश्चर्यजनक उपस्थिति जहाँ प्रकाश पाइबो को अपेक्षा करी छी। उड़ीसा एक रहस्य बना हुआ है। हर मोड़ पर एक अनकही कहानी है, अनदेखे स्थान है जो एक अनोखे आश्चर्य के समान है। अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली राज्य की आधिकारिक भाषा उड़िया है। उड़िया में 64 अक्षर है। उड़ीसा राजा अशोक के समय कलिंग के नाम से जाना जाता था, फिर राष्ट्रगान में उत्कल के रूप में गाया गया और फिर औध्र देश और अंत में उड़ीसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर क्या तुम्हें पता है, रामायण और महाभारत काल से उड़ीसा अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातियों को भारत का मूल निवासी माना जाता है। हम गढ़वा जनजाति हैं, जो उड़ीसा की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। हमारे क्षेत्र से कोल्हापुर, गोदावरी नदी कई सहायक नदियाँ बहती हैं। इंद्रावती नदी विभिन्न जलीय जानवरों का घर है। हम धान की खेती के लिए अपनी पारंपरिक स्वदेशी तकनीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी कारण मछली पकड़ने के माध्यम से अपनी आजीविका बनाए रखते हैं। हमारी तरह एक और जनजाति प्राचीन है। हम 16 जनजाति हैं। हमारे लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार 100 का अर्थ है छिपा हुआ और आरा का अर्थ है वृक्ष। घर की दीवारों को सौरस चित्रों से सजाते हैं। ये पेंटिंग हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और जनजाति को तरह पहाड़ी स्थल को पवित्र स्थान मानते हैं। आइए अब मिलते हैं कौन जनजातियों से। हम टोंगर कौन है? नियामगिरी पहाड़ियों पे रहते हैं। टोंगर का मतलब पहाड़ियों से है। नियम राज हमारे भगवान है और हम उनकी पूजा करते हैं। हमने नियामगिरी पर्वत के खनन का विरोध किया। कंपनी के लोग इसे बॉक्साइट के लिए माइन करना चाहते थे। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लिया और हमारी मातृभूमि बच गई। ये मिलते हैं उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध हस्तियों से। नमस्ते, मैं पद्मिनी राउत हूँ। वर्तमान में मैं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब रखती हूँ। मैं भारत का 32वां मुख्य न्यायाधीश था। मैंने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। वर्तमान में मैं भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं भारत की मुख्य भुगतान प्रणाली का भी प्रबंध कर रहा हूँ। वाह, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा और मुझे आपके जीवन से बहुत प्रेरणा मिली। अब आइए उड़ीसा के कुछ अनूठे स्थानों की यात्रा करते हैं। अभी हम जगन्नाथ मंदिर में हैं। आइए मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के शीर्ष पर स्थापित सफेद और लाल झंडा हवा की विपरीत दिशा में बहता है। क्या आप ऐसी इमारत की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई छाया न हो? यह लगभग नामुमकिन है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के पास किसी भी दिशा से कोई छाया नहीं है। जब आप इस मंदिर में आते हैं तो आप किसी भी तरह का अंधकार नहीं देखेंगे। गर्मी के मौसम में 108 पानी के घड़े से स्नान करवाने पर भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें अवकाश चाहिए होता है। स्वस्थ होने पर वह अपने भाई और बहन के साथ रथ पर विराजमान होकर यथ यात्रा के लिए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे प्राचीन यथ यात्रा है। हम ओडिशा में एक और अनूठे स्थान का भ्रमण करेंगे। यह खूबसूरत मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। निर्माण रचना से अलौकिक है, जो अपनी शान से सूर्य देव को समर्पित एकमात्र ज्ञात मंदिर के रूप में खड़ा है। मंदिर का निर्माण रथ के आकार का है। मंदिर के आधार पर पाए जाने वाले ये पहिए भी समय को दर्शाते हैं, जिनके सही समय की गणना
पहिए द्वारा डाली गई छाया को देखकर की जा सकती है। यह संरचना तो वास्तव में अद्भुत है। अब हम अपनी यात्रा को एक सुंदर ओडिसी नृत्य प्रस्तुति को देखकर समाप्त करते हैं। Bharat is truly the land of serene beauty. Now, fasten your seat belt and get ready for our next destination. You have arrived at your destination. हाँ माँ, प्रणाम। हाँ, खुश रह बेटा। ई बार छठ लगी घरे आवी था? नहीं माँ, इस बार नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस में बहुत काम है और छुट्टी नहीं मिली। हेलो भैया, क्या ला रहे हो मेरे लिए? माँ, बाद में बात करता हूँ। बिहार वो जगह है जहाँ से अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ और इसी विचार के आधार पर दुनिया के दो बड़े धर्म बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्थापना हुई। हर जीवित प्राणी जीना चाहता है और उन्हें जीने का अधिकार मिलना चाहिए। पूरे विश्व में जो अहिंसा का संदेश फैलाया वो सर्वप्रथम महावीर के काल से ही शुरू हुआ। ज्ञान को तालाब में कमर के समान उठा के रखा एक तरफ, तो एक तरफ पीपल की ठंडी छांव के रूप में दिया बुद्धत्व प्रदान किया भटकते हुए सिद्धार्थ को। बिहार की धरती से जन्मा बौद्ध धर्म दुनिया में सबसे शांति प्रिय और सहनशील धर्म माना जाता है। सिख धर्म में सहयोग शेष रहता था संभवतः तो 10वां गुरु जन्माया अपने यहाँ। गुरु गोविंद सिंह जी को जन्माया और एक नया भाईचारा शुरू हुआ, खालसा। यही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, जिसके कारण ये सिखों के सबसे पवित्र स्थल में गिना जाता है। You must be wondering where it all started. The year was 321 BC. Indian Emperor Chandragupta Maurya, under the guidance of political genius Chanakya, established the Maurya dynasty in Magadh. Later, Ashok pushed the boundaries of Magadh from Afghanistan to present-day Bangladesh, from Assam to Kerala and Andhra Pradesh. And thus, the first ever dynasty of Bharat and the biggest empire of the world was established. Bihar is known for protest for its own rights. Bihar is the first region in the world that challenged monarchy and came up with a new administrative pattern called Ganatantra or democracy. Even the Ashok Chakra, part of the national emblem, comes from Bihar, and when India got freedom, Bihar gave India its first president,
Dr. Rajendra Prasad. Well, India became a republic in 1950. I, Dr. Rajendra Prasad, was elected its first president by the Constituent Assembly. बिहार की माटी कई विभूतियों की जातक रही है। गुणों से मानव की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। मैं चाणक्य, मेरी सहायता से भारत में मौर्य शासन की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण एशिया के प्रथम सम्राट बने। हिंदू धर्म के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तवन ने अभी का धराशायी। हिंदू और मुस्लिम के बीच मेरा नाम कबीर है। मैंने अज्ञानी लोगों को अधर्म और पाप से मुक्त करने हेतु शरीर धारण किया है। यही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा IITians, मेडिकल ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स बिहार से बिलोंग करते हैं। I have also heard that the famous Nalanda University is situated in Bihar. Bihar was an epicenter of knowledge, culture, power and learning. The city Patliputra, presently known as Patna, is the home for one of the world's oldest universities, Nalanda University. Students and teachers were known for their high character and discipline. The university had the greatest library of the world that had a huge collection of books on literature, philosophy, science, history, economics and many more. The strength and the vastness of the library can be easily understood from the fact that it took full 3 months by the invaders to burn it down completely. Human Sang, a Chinese traveler who studied there, observed that students are introduced in the 7th year to a group of 5 signs. Thus, it was a place of holistic learning. You have arrived at your destination. भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। युद्ध करने में मैं अपने आप को सक्षम नहीं समझता क्योंकि यह मुझे सही नहीं लगता। 5 युद्ध करना क्षत्रिय धर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कर्म ना करें, हमें कर्म करना ही होगा। प्रकृति ने हमें बनाया ही इस तरह है कि हम कर्म करें, इसलिए जब तक जीवन है तब तक कर्म। जिनमें बाबा रामदेव से शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के सूत्र, योग एवं उसके लाभ के बारे में। बाबा रामदेव भारतीय योग गुरु हैं। योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य है। कपालभाति 5-5 मिनट करके 10 से 15 मिनट असाध्य रोगों में 1-1 घंटा हमने कराया है। इससे 99% रोग मिट जाते हैं। दुनिया के हर रोग और समस्या का हल है
योग। खेल के क्षेत्र में हरियाणा में बहुत से खिलाड़ी हुए हैं जिनकी उपलब्धियां सराहनीय हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 38 में से 22 स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। क्रिकेट में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत योगदान है। तो चलिए मिलते हैं कपिल देव जी से। नमस्कार, मेरा नाम कपिल देव है। मेरा जन्म पंजाब के एक प्रसिद्ध शहर चंडीगढ़ में हुआ था। मेरा करियर 1975 में तब शुरू हुआ जब मैंने हरियाणा के लिए पंजाब के विरुद्ध एक रोमांचक मैच खेला और उस मैच में मैंने अपनी टीम हरियाणा को 6 विकेट के साथ एक शानदार जीत दिलाई। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं वह पहला भारतीय व्यक्ति हूँ जिसने भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप लाने का काम भी किया था। Please tell me who was the world's #1 badminton player in 2015? She is none other than Saina Nehwal. Hi. मैं सानिया नेहवाल शीर्ष महिला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ और मेरा जन्म हरियाणा के एटार परिवार में हुआ। मैंने लंदन बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मुझे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुक्केबाजी की बात करें तो हम भिवानी के मुक्केबाजों को नहीं भूल सकते। हरियाणा के विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में देश को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। 2009 में विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। I just want to say that Indian boxers are no longer quite a weak lot. All are doing well at international level. अब मैं आपको मिलवाती हूँ भिवानी के मनीष कौशिक से, जो कि कांस्य पदक विजेता है। मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 बॉक्सिंग और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक प्राप्त करने वाले मुक्केबाजी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हमारे गांव के पुराने खिलाड़ी बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं कि वे कुछ बन जाएं और आगे कुछ कर पाए। अब आप देखिए गीता फोगाट के साथ एक साक्षात्कार। गीता फोगाट एक भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान जिन्होंने पहली बार भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। गीता के संघर्ष और उनकी जीत की राह प्रेरणादायक है। आपका आजकल की लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहती हैं? आप जिस भी फील्ड में जाना चाहती हैं, आप लक्ष्य को बनाकर काम कीजिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती। अगर आप डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगी तो आप हर एक चीज अचीव कर सकती हैं। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ फतेह। अय्यरन भाई लखविंदर सिंह जी अमृतसर से एक ओमकार। ओमकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। Mission Fateh symbolizes the resolve of the people of Punjab to halt the spread of the novel coronavirus through discipline, cooperation and compassion. It is a true reflection of the Punjabi spirit that can overcome all odds to emerge victorious. As I'm traveling into the roots of this country, I'm getting lost in its true flavor.
Yoo-hoo! What are we tasting next then? You have arrived at your destination. शिमला की घाटियों में वह तब तक एक सामान्य दिन था जब तक आकाश में उड़ती हुई एक विचित्र आकृति तेजी से नीचे आती हुई नहीं दिखाई दी थी। उसी स्थान पर पास खेल रहे कुछ बच्चों ने यह देखा कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि एक विशाल अंतरिक्ष यान वहां उतरा है और उसके पास 4 विचित्र जीव खड़े हुए हैं। आप सभी लोग कौन हैं और इस स्थान पर कैसे और क्यों आए? We are the citizens of Oliviano. We were traveling all through India, but then we heard some creative music coming from this land, so we thought we'll land here. Oh, it's a wonder we landed here. In which part of Earth are we exactly in? आप एशिया महाद्वीप में स्थित भारत देश के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, चारों ओर की हरियाली प्रकृति की अनूठी मिसाल है। हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। नमस्कार, आप सभी का हिमाचल प्रदेश में हार्दिक स्वागत है। Wow! Where is this melodious voice coming from? यह यहाँ की लोक संगीत की आवाज है। ये हिमाचल के कांगड़ा स्थान की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल दे चीना दे डालू, उजल दे चीना दे डालू, चीना कांगड़े दा, चीना कांगड़े दा। गद्दियां रे दाड़ा जो चुगते, थैला प्यूला फुलड़ू जो चुगते, दाड़ा गद्दियां रे दाड़ा जो चुगते, थैला प्यूला फुलड़ू जो चुगते। बजड़े सजदार बाका बाल, बजड़े सजदार बाका बालो, जीना कांगड़ेगा, जीना कांगड़ेगा। हवा चल रही ओ चल रे जीना दे डाली, ओ चल रे जीना दे डाली, जीना कांगड़ेगा, जीना कांगड़ेगा। Wow, amazing! It is so melodious. I really like it. What is that you reading there? And what are these sounds? यह एक मंदिर है। यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं। ये मंदिर के महंत जी हैं। नमस्कार महोदय, क्या आप हमारे अतिथि जनों को इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताएंगे? अवश्य, क्यों नहीं। यह हिमाचल का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह हिमाचल के जिला कांगड़ा में स्थित है। देवी दुर्गा के एक महान भक्त कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनोखा है क्योंकि इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर संगीत के अलावा और भी दर्शनीय चीजें हैं। महोदय, आपके एम्पोरियम में ये जो वस्तुएं हैं, कृपया इन अनोखी कला से सजी हुई कलाकृतियों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये हमारे कुल्लू की प्रसिद्ध शॉल है। इस शॉल की खासियत है कि ये खड्डी पर बनती है और ये दोनों तरफ से एक चीज रखती है। शॉल बहुत महंगी होती है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी टोपी, नेहरू जैकेट इत्यादि प्रसिद्ध है। चंबा में ही रुमालों पर ये विशेष तरह की कढ़ाई की जाती है। इन पर रामायण, विष्णु लीला, विष्णु जी तथा शादियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये रुमाल दोनों तरफ से एक से नजर आते हैं। ये उपहार पैक करने के प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ की रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कानों की बालियाँ, गले के हार तथा नाक की नथनी प्रसिद्ध है। वो देखो, वहाँ जो लड़की नृत्य कर रही है वह यहाँ का लोक नृत्य है। हिमाचल को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। खुबानी, नाशपाती, सेब, नारंगी आदि फल इस जलवायु में बहुत अधिक बढ़ते हैं। कश्मीर की घाटी में बड़े बड़े बागों में सेब, नाशपाती, आड़, अखरोट, बादाम और चेरी का उत्पादन होता है। Where is Kashmir? I want to go there. आपका हमारे कश्मीर में बहुत बहुत और हार्दिक स्वागत है। वो सामने देखिए, डल झील नजर आ रही है ना? ये डल झील श्रीनगर का गहना मानी जाती है।
ये हमारी झील इस धरती पर स्वर्ग की तरह मानी जाती है। यह कश्मीरी करी है। यह यखनी, दही व कमल ककड़ी को मिलाकर बनने वाली कश्मीरी करी है। ये देखिए हमारी दूसरी प्रसिद्ध व्यंजन कश्मीरी पुलाव। हिंदुओं का विश्व प्रसिद्ध तथा पवित्र तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के राज्य में त्रिकुटा पहाड़ियों पर बसा है। माता का यह मंदिर पहाड़ों में एक गुफा के अंदर स्थित है। प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त माता के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा, सबसे श्रेष्ठ सबसे प्यारा, जय हिंद जय भारत। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है कश्मीर। The beauty of Himachal and Kashmir is incomparable. Even we don't have such dazzlings there in our planet. I assure you, after this, you will have plenty of snow stories to share with your planet mates. Oh, let's go! Let's go! I want to explore that secreto! You have arrived at your destination. झंडिया बोजू लगला बिलोरी। हाँ मित्र, अब मैं बताती हूँ उत्तराखंड के विषय में, जिसके साथ हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। भारत के सर्वोच्च शिखरों में नंदा देवी मात्र शिखर न होकर यहाँ के निवासियों के लिए एक जीवन दृष्टा है। फूलों की घाटी का सौंदर्य लोगों को अचंभित तो करता ही है, साथ ही साथ रामायण में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने ग्रह पर सुनाने के लिए तुम्हें बहुत सी रोचक बातें एवं कहानियाँ पता चलेंगी। अब आपके सामने उत्तराखंड के कुछ रोमांचक अंतर्राष्ट्रीय तथ्य पेश करने जा रहे हैं। तो प्रकृति, तुम क्या बताना चाहती हो हमारे इस नए दोस्त को? मुझे यहाँ का सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका काम है पूरी दुनिया में एजुकेशन, सोशल, नेचुरल साइंस और कल्चरल से संबंधित चीजों को बढ़ावा देना और उनको संरक्षित करना, और इस तरह पूरी दुनिया में एकता और शांति बनाए रखने की कोशिश करना। और हाँ, भारत में 38 साइट को विश्व धरोहर घोषित किया है। यह सब भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की संपत्ति है। तो तुम्हें क्या लगता है विदुषी? और चाबी, ये भी तो सुनो, उत्तराखंड में एक विश्व धरोहर नंदा देवी और फूलों की घाटी है। वैसे तो ये अलग अलग है, लेकिन 2004 में यूनेस्को के MV यानी मैन ऑन द बायोस्फीयर प्रोग्राम में से एक ही माना। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक है। ये तो धार्मिक स्थल क्या आपको पता है कौन से? मैं बताता हूँ। सबसे पहला है चमोली जिले में स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। ये गुरुद्वारा 4633 मीटर ऊंचाई है। इसके अलावा यह गुरुद्वारा दुनिया का एकमात्र गुरुद्वारा है जो कि 5 भुजा आकार का है, ताकि इसके ऊपर बस है। केदारनाथ धाम और तुंगनाथ तीसरे क्रम का शिव धाम है। ये दुनिया में सबसे ऊंचाई का शिव मंदिर है जो कि 3680 मीटर ऊंचा है। और जानवी, क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में चौपटा तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पे। इसके नीचे चौपटा आता है, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड। अब हम आते हैं अगले तथ्य पे, जो कि उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताता है। यह है नैनीताल जिले में स्थित बाबा नीम करोली का आश्रम, जिसे कैची धाम के नाम से भी जाना जाता है। एक खास बात यह है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मशहूर हस्तियाँ आती रहती हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड हस्ती जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बड़े-बड़े लोग बाबा नीम करोली के अनुयायी हैं। मैंने तो ऋषिकेश के बारे में सुना। यह अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन में सबसे आगे है। यह द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। दुनिया में जिसको योग सीखना होता है सब यहीं आते हैं। क्या तुम कभी ऋषिकेश गए हो? हाँ बिलाल, मैं अपने परिवार के साथ गया था। बहुत ही सुंदर जगह है। हम भी जा रहे हैं अगले हफ्ते।
हाँ बिला, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अगर वहाँ जाओ तो द बीटल्स आश्रम जाना मत भूलना। 1968 में ब्रिटेन का रॉक बैंड भारत आया। ये लोग यहाँ पर योग और आध्यात्मिकता सीखने आए तो श्री महेश योगी जी के आश्रम रुके। यहाँ रहकर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध एल्बम डिवाइड्स एंड द बीटल्स एबी रोड के लिए 40 से ज्यादा गाने लिखे। यह थे उत्तराखंड के कुछ अजब गजब तथ्य। और अब मेरे मित्र आपके सामने यहाँ का रोचक संगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं यज्जत और सॉलिश। अरे वाह, इतने सारे तथ्य और लाजवाब संगीत। मुझे तो लगता है कि आज आप सब यहाँ से कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ की मशहूर हस्तियां। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्री अजीत डोभाल को चित्रित कर रहा हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री का 5वां और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हूँ। मेरे शुभचिंतक मुझे भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से भी बुलाते हैं। मैंने ऑपरेशन विंग के प्रमुख के रूप में 1 दशक बिताने के बाद 2004 व 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में काम किया था। नमस्कार, मैं हूँ खड़ग सिंह वल्दिया। मैं एक भारतीय भूवैज्ञानिक था और मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति भी था। मुझे 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और मुझे 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित्रा नंदन पंत हूँ। 1952 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर वापस आ गया। मैंने ग्रंथि, गुंजन, वीणा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगवाणी जैसे कई काव्य रचनाएं की। 1915 का वर्ष भारत के आजादी आंदोलन में बड़े महत्व का साल था। नमस्कार, मैं हूँ आकाशवाणी का प्रख्यात समाचार वाचक देवकी नंदन पांडे। मुझे कुमाऊं के गांधी नाम से भी जाना जाता है। मेरा समाचार पढ़ने का अंदाज करोड़ों श्रोताओं के दिल को छू जाता था। अतुल्य है मातृभूमि हमारी, जिसने ऐसे महान लोगों को भेजा। तो बताओ दोस्त, कैसा लगा तुम्हें ये सब जान के?